خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. دیکھو سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں. اور ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں جب بڑے خوش ہوتے ہیں تب سجدہ کرتے ہیں, بڑے غمگین ہوتے ہیں تب سجدہ کرتے ہیں, سفر میں, اکیلے, مسافت میں, مجلس میں, بہرحال اس کے نام کے بغیر ہم ادھورے ہیں. واللہ جو حاکم ہے, جو لطیف ہے, جو خبیر ہے, مناجات کر رہا اسی پاک پروردگار کی کہ تو ہے حاکم موسموں کا, تو خدائے کائنات, تو ہے حاکم موسموں کا, تو خدائے کائنات, مالک روز جزا ہے, صاحب اعلیٰ صفات. اور پاک تیرا ایک اشارہ رقص کرتی ہے ہوا, ہے کبھی شعلہ صفت اور ہے کبھی ٹھنڈی ہوا. تیری مرضی سے چمک اٹھتی ہے ڈھالی چاند کی, اشارے سے ایک ہلال نو کو کر دیتا ہے والی چاند کی. ہے پرے خوشبو پہ تابندہ تیرا اسم عظیم, ہے پرے خوشبو پہ تابندہ تیرا اسم عظیم, ہر تجلی میں تیری تاثیر ہے رب کریم. بے سفینوں کے لیے دریا کو ساحل کر دیا اور دشت ہم کو رفتہ رفتہ تو نے منزل کر دیا. ہماری منزل, ہماری نشانی منزل بے شک وہ اللہ کی رضا, اللہ کی خوشی, اللہ کے لیے عبادتیں کرنا, اللہ کو یاد کرنا, اللہ کی کیمیائی بیان کرنا. اللہ کے نام کے بغیر محفل ادھوری ناقص ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اپنی اس تہذیب کو ایک مرتبہ پھر زندہ کریں. ہمارے مسنگ فرینڈ کے ایک بہت ہی مخلص ہمارے رفیق, ہمارے عزیز جناب شفیق بھائی کو میں آواز دوں گا کہ وہ کرت سے ہمارے اس باروکار پروگرام کا آغاز فرمائیں. جناب شفیق بیٹا. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. معلوم ہے علامہ اقبال نے ایک 4 مصرع کہا تھا ایسے ہی مخلصین کے لیے, ایسے ہی محبین کے لیے کہ کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں, غلام تبرل و زنجر نہیں, اور جہاں بھی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساگر نہیں. ایسے ہمارے مہمانان ہیں اور 8 لوگ یہاں پر موجود ہیں جو ایک ماسٹر رہ چکے ہیں, جو کسی ادارے کے چیئرمین ہیں, جو ایک بہت ہی کامیاب وکیل ہیں, جو بہت نامور صنعتکار بھی ہیں. ہر ایک
میرا اپنا دوست، میرا اپنا حبیب، میرا اپنا رفیق اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے نوازا ہے۔ کل کچھ نہیں تھے مگر آج بہت کچھ ہے۔ اگر میں ایک نام لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل غلط نہیں کہوں گا۔ مثال کے طور پر نعیم شاہین صاحب کی بات لیں۔ جیسے میں نے ایک قول پڑھا تھا کہ اپنی مٹی سونا ہے۔ ایک شخص ہماری طرح خاک سے اٹھا، مٹی سے اٹھا اور آسمان تک کے جا پہنچا۔ میں ان کے تعارف میں جب میں ان کو تاثر کے لیے مدعو کروں گا تو ان کا ایک تاریخی جملہ جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا اور وہ کہے کہ بھول گیا، میں یہاں پہ دوہراؤں گا، اور اس جملے میں اس حرکت نے ان کو ڈاکٹر نعیم شاہین بنا دیا۔ وقت آئے گا تو بتاؤں گا۔ بہرحال میں آپ تمام کا استقبال کر رہا ہوں۔ لتمین کے کھل گئے شہر تمنا میں ہنسی لمحے کے پھول پھر ادا ہونے کو ہے سنت بزم رفیق ہے یقین اس سر خوشی میں آپ آئیں گے ضرور۔ جی میں آتا ہے کہ کھولوں عطر سے دہلیز کو، جی میں آتا ہے ستاروں کو اتاروں فرش پر، اور جی میں آتا ہے معطر کر دوں شاخ برگ کو، جی میں آتا ہے تو خشاک کو سیٹل کروں، جی میں آتا ہے بنا دوں شامیانہ نور کا، اور جی میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب کے لہجے میں شامل۔ آج کی اس پروگرام کی تقریب سب محترم ڈاکٹر سعید فارانی صاحب تقریب میں مہمانان معظم محترم جناب رمضان صاحب، محترم جناب نورانی درگاہی صاحب، محترم جناب ہارون مستر صاحب، محترم جناب محمد ظفر صاحب اور عزیز ترین ساتھیوں، میری تکمیل میں شامل ہیں کل تیرے حصے۔ یہ شعر آپ لوگوں کی نظر احباب کی نظر ہے کہ میری تکمیل میں شامل ہے کل تیرے حصے، ہم اگر تجھ سے نہ ملتے تو ادھورے رہتے۔ کیا بات ہے، جنوب کی تقریب 3 اکتوبر سن 2020 کو ہوئی۔ اس تقریب کی رہنمائی جو ہے پہلے دن سے، اول دن سے جو ہے ہمارے رہنما، ہمارے سرپرست میرے مراد محترم ڈاکٹر رضوان خان صاحب سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تکمیل، یہ تخلیق جو ہے آپ کو میں بتاؤں ایسی جگہ ہوئی ہے کہ آج بھی جب ہم محسوس کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ ہمارا ایک عزیز دوست اسلم خان سر جو دہلی میں درس و تدریس کے قائد انجام دیتے تھے، ان کا انتقال ہوا، اور اسی طرح سے تمام زیادہ تر احباب کو اس میں علم ہو گیا کہ ان کا انتقال ہوا۔ احباب قبرستان میں جب بیٹھے تو رضوان خان صاحب نے مجھ کو کہا کہ یار مشتاق، اگر اس طرح سے لوگ اپنے سے رخصت ہوتے رہے یا اپنے احباب کی حال میں اگر ہم اس سے نہیں جان پائے، ہم ان سے رابطے میں نہیں رہے تو یہ ہمارے لیے بہت شرمندہ ہے۔ مجھ کو جملہ اچھا لگا تو تبھی اسرائیل خان صاحب اگلے ناچیز نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ اس دن سے لے کے آج تک الحمدللہ یہ گروپ ہر اعتبار سے نہایت ہی ایکٹیو ہے۔ اب یہ گروپ جو ہے یہ چلتے چلتے ایک باغ بن گیا، ایک چمن بن گیا جس میں طرح طرح کے پھول کھلے۔ میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کہ اس گروپ میں زیادہ تر جو ٹیچرس ہے، لیکن الحمدللہ رضوان خان صاحب نے گروپ کے پہلی پارٹی سے ایک گروپ کے احباب کو نام دیا تھا کہ جہاں کا ہر رکن اپنے آپ میں کنجومن ہے، اور وہ الحمدللہ صادق آیا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ریٹائر ہوئے ہیں یا جو آج ہمارے سامنے بیٹھے جو شامل ہیں، ان میں سے زیادہ تر سب انجمن کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ کوئی پرنسپل بنا، کوئی ہیڈ ماسٹر بنا، کوئی لیکچرر بنا، کوئی پروفیسر بنا، کوئی اسسٹنٹ ٹیچر بنا۔ یہ تو صرف ان لوگوں کی بات ہے جو ٹیچنگ لائن سے مربوط ہوئے۔ ہمارے گروپ میں تاجر بھی ہے، عقیل شیخ صاحب، الحمدللہ جن کے نام کا سکہ چلتا ہے صبر ٹریڈرز۔ ہمارے گروپ میں ایک اور تاجر ہے، صنعتکار ہیں، میری مراد ہے محترم جناب ہدایت اللہ ورد صاحب۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات ہے جن کے بارے میں کسی کو کچھ بولنا ہی نہیں پڑے گا۔ تو ہمارے گروپ میں جو بھی ہے
डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, उसके बाद जो आम इंसान भी है, जो आम इंसान है जिन्होंने यानी अपनी जिंदगी जो है आम जिंदगी तरह गुजार रहे, वो भी अपने आप में अंजुमन की को वो जिस फील्ड में है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी उन्होंने अपना एक मकाम बनाया। तो ये इस तरह से ये चमन जो है अभी तक चलता आ रहा है और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इसको जो है ना हयात कायम रखे। इतना ही नहीं डॉक्टर साहब और मेहमानान मुअज़्ज़म, हमारे अहबाब टीचर बनने के बाद, प्रिंसिपल बनने के बाद, सुपरवाइजर बनने के बाद तर्क तालीम कभी तर्क नहीं। और ये शौक अगर आप देखोगे तो हमारे ग्रुप में जब अहबाब का नाम लिखा जाता है तो उसमें ज्यादातर अहबाब के साथ डॉक्टर लगता है और ये बहुत मेरे फख्र की बात है। मेरी फील्ड है इसलिए मैं इस बात का इजहार यहाँ करना चाहूंगा। मैं पहले एक बात से माजरत चाहता हूँ कि मुमकिन है कि मैं सबका नाम ना ले पाऊँ, इसलिए कि सबके नाम जहन में एक वक्त में आ नहीं सकता, वक्त को उतना नहीं। मैं डॉक्टरेट की बात जब निकली है तो मैं रिजवान खान साहब की इसलिए बात करूंगा कि वो मेरी फील्ड हो। आई एम ऑल्सो फिजिकल टीचर। ये मालेगांव की पहली शख्सियत थी जो फिजिकल एसोसिएशन है जो हमारी, जब उन्होंने उनको हम कार्ड दिए मैं रमजान सर वगैरह जाकर, तो उन्होंने देख कर बेइंतहा हैरत का इजहार किया, फख्र महसूस किया कि यार मालेगांव में पहला डॉक्टर इन फिजिकल एजुकेशन। तो ये इस बात का गम्माजी थी कि हमारा शहर कहाँ जा रहा है, हमारे अहबाब कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे अहबाब ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और शुरू दिन से हमारा ये तरीक़ाकार रहा है अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब कि हमारे अहबाब या हमारे अहबाब के बच्चे अगर कोई कामयाबी या बुलंदी या उरूज हासिल करते हैं तो हम उनके घर जाकर उनका इस्तेकबाल करते। इस्तेकबाल मकसद नहीं, मकसद है हौसला। क्योंकि जिसका जो काम है अगर उसको उस नाम से हौसले के साथ पेश किया जाए तो उसको काम करने की ताकत पूर्ण हो जाए। तो हमने शुरू पहले दिन से सिर्फ इस्तेकबाल नहीं, सुख हो दुख हो हर तरह से हर अहबाब तक पहुंचे, उनकी दाद रसाई की, उनकी जिस तरह से भी हमने मदद करना चाहिए मदद की। ये सब ये ग्रुप के जो अहबाब है ये इनकी मोहब्बत है, कोई एक दो आदमी से ग्रुप मुमकिन नहीं है। ये तमाम अहबाब की मोहब्बत है कि कभी इनकार नहीं किए, कभी भी एक छोटे से मैसेज के ऊपर उनको बुरा बेचारे जमा हो जाते थे। तो ये हमारा ग्रुप है। उसके बाद इस ग्रुप के अब जाहिर सी बात है जब इतने तालीम याफ्ता इतनी अंजुमन एक साथ मिली तो फिर ये हुआ कि यार हमको कुछ इसके बारे में शहर को कुछ देना चाहिए, क्योंकि हम में से ज्यादातर यहाँ जो बैठे हैं वो रिटायर। तो मैं एक बात कहूंगा कि वी आर रिटायर और नॉट टायर्ड। हम रिटायर हुए, थके नहीं। और रिजवान खान साहब ने इससे पहले जब सुबुकदोश असातिज़ा-ए-किराम की पार्टी से एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि आप अगर रिटायर हो गए हो तो ये मत समझिए कि आप अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो। उन्होंने कहा था कि अब आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। दोहरी इस मानो में कि आपके पास पहले एक छोटा सा मैदान था, अब आपके पास पूरा खुला मैदान है। आप अपनी समाजी तालीमी जिस मजहबी जिस एतबार से भी अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करके शहर को फैस पहुंचा सकते हो बिल्कुल पहुंचाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज्यादातर अहबाब इस काम में लगे हुए जुड़े हुए। उसी सिलसिले की एक कड़ी जो है आज हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें बहुत सारे हमारे जो अहबाब है वो सुबुकदोश हो रहे हैं। उनमें से हमारे दो रुकनों को जो है, दो अहबाब को जो है दो एकेडमिक अवार्ड मिला है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये ग्रुप का तरीक़ाकार रहा है कि हौसला बढ़ाना, और उसे हौसले की सिलसिले को आज एक कड़ी की शक्ल देकर आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है ताकि उनके अंदर और जाना है। कहते हैं ना कि ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बसा, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बसा, अपने दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा। ये वो जान पैदा करेंगे इंशाल्लाह। ये वो प्रोग्राम है जिनको जो रिटायर हो गए हैं और जिनको अवार्ड मिला है उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तौर पर समझते हुए वो शहर फैज पहुंचाएंगे। आखिर में मैं इस शेर के साथ अपनी बात समझता हूँ। ये दोस्तों का गुलसिता महकता रहे खुदाया, ये दोस्तों का गुलसिता महके सदा खुदाया, ताहश्र ना हो
यादव इस पद के साथ शायद शिफ्ट। आपके दायरे असर को वसीद किया है। हाज़रीन, इन 4 मिसरों के साथ मैं आवाज दे रहा हूं कि हर फन को नया मोड़, नया हुस्न दिया है। हर फन को नया हुस्न, नया मोड़ दिया है। हर फिक्र को कागज की गवाह हमने ही दी है, और हर रंग को हिकमत का सबक हमने पढ़ाया। हर रंग को खिलने की जिया हम ही ने दी है। जनाब पेन शाहीन सर साहब अभी मेरे खैर नहीं इस खूबसूरत महफिल के सदर डॉक्टर सईद फारानी साहब और स्टेज पर बैठी हुई तमाम वक्त ज़्यादा हो गया है, इख्तिसार से काम लेंगे तो बेहतर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो इज्तिमा कर रखा है, तो ये किसी की दावत पर या किसी की काविश में सबको इकट्ठा करने का जो फन है, ये हमारे प्रोफेसर रिजवान खान साहब के साथ जाता है। और कोई नहीं आता तो उसको डांट के बुलाता, जैसे मैं ही नहीं आता पहले डांट के बुलाया। तो मैं एक शेर कहूँगा, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। एक शेर कहूँगा कि शोक चेहरे को संभलने की ज़रूरत क्या है, शोक चेहरे को संभलने की ज़रूरत क्या है, सादगी में भी कयामत किया था। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं, रिटायर होने के बाद कुछ लोग अपने घर के बच्चों के और तमाम फिक्र को इकट्ठा लेके अपने कांधों पर घसीट रहे हैं। इनके तमाम ये सफर के साथ साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग अपने समाज को, अपने माहौल को और कम से कम अपनी बोलना चाहिए कि ऐसे लोग जो समाज से कट चुके हैं उनके लिए भी फिक्र कर रहे हैं। पिछली मीटिंग में हमारी एक बात हुई थी, वो आइंदा इंशाल्लाह हम बुलाएंगे। और ये मुअज़्ज़िज़ीन शहर को बुलाने का मकसद नहीं, इसके पीछे ये है कि भाई देखो हम लोग भी रिटायर होने के बाद या इतने पुराने होने के बाद भी सबको जमा करें। और हमने ऐसे ऐसे लोगों को जमा किया कि उस वक्त का स्क्रू भी नहीं मिलेगा, नट बोल्ट भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बुला रहे हैं कि आप लोगों से हमको हौसला मिलता है और आप लोगों तक ये बात जाती है कि भाई हम मुत्तहिद हैं और हम कौम के तई, हमारे दोस्तों के तई फिक्रमंद रहते हैं। इसलिए और रहा जो एक मसला आमतौर पे होते रहता है कि वो यहाँ चला गया, वो वहाँ चला गया, ये इसने इतनी तरक्की की, उतने की, उसने ये अचीवमेंट उसके तमाम आए। तो मौलाना अपने अल्लामा इकबाल साहब का रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि हिस्सा दिया करतार से जल ने हरे को, उसको कि वो जिस चीज़ के लायक नजर आए। तो हमको जो भी मिला है तो आप यकीन जानिए ये कोई छीन नहीं सकता। हम उस लायक थे, अल्लाह ने हमको चुना और हमसे काम ले रहा, हमारी कोई औकात नहीं। और जो लोग तमाम मसाइब के साथ चलते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग हैं सबसे पुराना दोस्त मेरा यहाँ अकील दादा है। नाक छाप झोपड़पट्टी में हम लोग रहते थे सर। हमने उस झोपड़पट्टी से लेकर यहाँ तक का सफर जो रहा, तो गरीबी, पैसा और ऐसे जिसको बोलना चाहिए कि किसी के नाम से, किसी की सिफारिश से, तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी नहीं है आगे बढ़ने की। कि किसी ने कहा कि सलीका शर्त है दुनिया में, कुछ नहीं मुश्किल, हवा में तो जलाओ चिराग जलते। शुक्रिया। ऑनरेरी डॉक्टर जनाब मोहम्मद रमजान मक्की सर साहब से। जनाब रमजान सर साहब सरदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में लेक्चरर के तौर पे अपने खिदमत पेश कर रहे थे मुंबई में सर्विस के बाद। सर्विस के दौरान ड्रामा निगारी, सकाफती सरगर्मियाँ,
स्ट्रीट प्ले, बहुत सारे ड्रामे लिखे। पहला ड्रामा उन्होंने लिखा तो उसको दूसरा इनाम मिला, नशा। दूसरा ड्रामा लिखा तो पहला इनाम मिला। तंज मज़ा में भी आजकल अपनी तबाह आजमाई कर रहे हैं। तंज मज़ा में मिसाली मुदारिस और अवार्ड गुज़िश्ता माह के शुमारे में जिंदा दिलान हैदराबाद में शायद हुआ, और जिंदा दिलान मालेगांव में भी जो प्रोग्राम हुआ उसमें इनके इन शायरियों को पेश किया गया था। हजरत बच्चों को तो पढ़ाते ही थे, बच्चियों को तो पढ़ाते ही रहे, मगर बच्चियों और बच्चों के उस्ताद हम जैसे उस्तादों को भी पढ़ाते थे। जब भी नई किताब शायद होती थी, कोर्स बदलता था, टीचरों का वर्कशॉप जो है वो हमारे रमजान सर लिया करते थे। इनकी इन्हीं मेहनतों से उसमें नासिक डिविजनल बोर्ड के तमाम टीचरों को इन्होंने ट्रेनिंग दी। सर ने ट्रेनिंग दी। मैं बड़े अदब और इकराम से सर को आवाज दे रहा हूँ कि माइक पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं कि चल पड़े हम जिस तरफ भी आप लोग आयात शौक खार से गुल और उनसे कुल से था बनता है। जनाब रमजान अस्सलाम वालेकुम। बाहर एक आखिर हो तो वाइस का मेरे साथ बुरा दिल को भा जाए तो अकबर की खुराफात अच्छी। वक्त को मद्देनजर रखते हुए मुख्तसर अपने साथ से शुरू न। आज ये आज़ादी और तहनीती प्रोग्राम मेरे लिए दोहरी खुशी का बात। मेरा शुमार आज की दोनों कैटेगरी में होता है। एक उर्दू साहित्य अकेडमी अवार्ड की कैटेगरी में जो सन 2023 के लिए मुझे तफवीज़ किया गया, और दूसरा ये कि रिटायरमेंट की फहरिस्त में मेरा नाम भी शुमार हो गया। इस ग्रुप का ताल्लुक तालिब इल्मी के ज़माने से है, लेकिन ये परवान चढ़ा हमारी उम्र की आखिरी जब हमारे घरों में चांदी आ गई, दांतों में सोना लग गया और हम सोने के लिए बेकरार। ये महफिल ऐसी है जो एक दूसरे को जानती है, रबी पीरियड से लेकर आज तक। यहाँ पर अपनी कोई कारकर्दगी बताना फजूल होगा, लेकिन जो बातें दूसरों से अलग करती हैं, कभी कभी उनका जिक्र कर देना, उनकी सराहना करना नहायत जरूरी हो जाता है। उसी सिलसिले में आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था और मुअज़्ज़िज़ीन शहर को इसमें मदऊ किया गया था। ये एक बाकायदा नहीं लेकिन दिल से अरेंज किया हुआ प्रोग्राम है। मैं तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो एजाज़ यहाँ पर दिया जा रहा है, जो अवार्ड हम लोगों को मिला है, उन लोगों को हमने अपनी कारकर्दगी दिखाई तब हमको अवार्ड मिला। और आज जो हमारी पसीराई की जाएगी उनको हमारी कोई कारकर्दगी बताने की जरूरत नहीं है। ये तमाम के तमाम हमारे काम बड़े मिनशम से हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात शुरू अल्लाह के नाम से
نوجوان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں صرف اللہ رب العزت کے لیے. سامعین، 2020 میں گروپ فارم کیا گیا. میں رضوان خان صاحب اور مشتاق بھیا انہوں نے کوششیں کی اور یہ اتنی جو یہاں پر کتاب دکھائی دے رہی ہے یہ اسی کوششوں کا نتیجہ ہے. لیکن میں خوش نہیں ہوں، معاف کرنا مجھ کو، میں خوش نہیں ہوں نہ گروپ سے نہ گروپ کی قیادت سے. گروپ کا جو مقصد ہے وہ بہت ہو چکا ہے. گروپ کا مقصد صرف پارٹی اور کھانے تک کے محدود رہ گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. حرکت زندگی ہے اور جمہور موت. ہم سب اساتذہ ہیں، ٹیچر ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کسی شاعر نے نہیں بلکہ دو شاگردوں نے یہ شعر کہا ہے بیروبی میں رہتے کہ ان کے ماتھے پہ کہاں کوئی شکن ہوتی ہے. ان کے ماتھے پہ کہاں کوئی شکن ہوتی ہے جن میں کچھ کر کے دکھانے کی لگن ہوتی ہے. زندگی میں نے مشقت سے گزاری ہے کیا میں جو آرام سے بیٹھوں تو تھکن ہوتی ہے. لیکن ہم سب آرام سے بیٹھے ہیں. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. زندگی ہم نے ہنسی مذاق کا گزار دیا. کم سے کم اب ہمیں ان لوگوں کو دیکھ کر کوششیں کرنا چاہیے جو ہمارے سامنے اسٹیج پر بیٹھے ہیں. مالیگاؤں سوسائٹی کے ذمہ داران میں یہاں پر موجود ہیں. رمضان جبر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر فرانی صاحب جو میری بیٹی کے آئیڈیل ڈاکٹر ہے. غرض یہ لوگوں کو دیکھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں آپ قوم کی خدمت کے لیے اترنا ہے اور قوم کی خدمت ہم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں قوم کا معمار کہا جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر جو ہم نے پہلے دن ایڈوکیٹ سلیم کے ساتھ بیٹھ کر ایک میٹنگ کی تھی اور اس میں جو طے کیا تھا اس ایجنڈے کو دوبارہ کھولا جائے اور اس میں عمل کیا جائے. یہی کہہ کر میں اپنی جگہ دیتا ہوں. سبوں کو آئینہ دکھا کر چاند بنانے والے استاد محترم محمد انصاری صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر فاروقی صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام صاحبان اعزاز اور حاضرین کرام، السلام علیکم. اللہ تعالیٰ شہری سے ویسے ہی ابھی اور مقدم لسان کا محمد اور بھی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے اپنے یہاں جمع ہے اور میں سوچتا ہوں کہ سننے کی طاقت مجھے رہ گئی ہے. بہرحال میں بہت ہی مختصر اپنی بات پر چاہوں گا. میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں بینی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جہاں بینی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوب ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے. تمام صاحبان اعزاز جو ہیں انہوں نے اپنے جگر کو قبول کیا ہے، لیکن مختلف رواج کے جو ہے مختلف ہوئے ہیں. لیکن یہ شاید منظر عام پر نہ آ پاتے. کچھ جو سمجھے اس اہمیت کو تو رضوان انہوں نے گروپ کے تمام ممبران کو جمع کیا، ایک بامقصد تقریب کا انعقاد کیا اور نہ صرف تقریب کا انعقاد کیا بلکہ نظر کام و دہن سے بھی انہوں نے سرفراز کیا. رضوان صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اکیلے کیپٹن جو ہے اگر وہ 100 رن بنا لے، سینچری بنا لے اور اس کے تمام دوسرے پلیئر سے اگر 1-2 رن 0 پہ آؤٹ ہو جائے تو ٹیم ہار جائے.
तो आप लोगों के सर भी इसका सेहरा जाता है कि बराबर आप लोग अपने कैप्टन का साथ दे रहे हैं और टीम को मजबूत से मजबूत कर रहे हैं। ये तमाम लोगों का एजाज, और उसमें भी वो नईम शाहीन सर का डबल रोल के एजाज भी मिल रहा है और ही इज अबाउट टू रिटायर है। तो ये जो तकलीफ का सिलसिला है रिकॉर्ड सर ये चलना चाहिए। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मसाइल आएंगे, तंगियाँ आएंगी और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन सफर पे आज वही कश्तियाँ निकलती हैं। सफर पे आज वही कश्तियाँ निकलती हैं जिन्हें खबर है हवाएं की तेज चलती। तो आपके काम की दाद न देना ये इंसाफी होगी। बहरहाल ऐसा दौर जिसमें रिश्तों का कोई अदब और पास लिहाज नहीं रहे है, मोबाइल ज़्यादा दौर में अब रिश्तों की अहमियत कम होती जा रही है। और ऐसे माहौल में आप तमाम रिश्ते तो बहुत दूर की बात है, अपने दोस्तों को इकट्ठा करके जो ये काम कर रहे हैं, तो ये काबिल मुबारकबाद है, क्योंकि फिजा की रुख में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल है। फिजा के रूप में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, और हवा की सच पर दिया जलाना जला के तमाम तर तारीफ और तौसीफ के बाद रिजवान साहब, मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसे माहौल में भी आप इसराइल का एक छोटा सा हमला भी बर्दाश्त कीजिए। और मैं सोचता हूँ कि शायद वो मुस्बत पहलू है, इंशाअल्लाह वो एक घंटा अगर निकाला जाए तो ना कोई इच्छा भी होगी ना और मुफाहमत हो जाएगी। अगर मुफाहमत होगी तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल आखिरी पैगाम आप लोगों को यही है, तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करके यही कहूँगा कि अंधेरी शब में भी तामीर आशिया न रुके, अंधेरी शब में भी तामीर आशिया न रुके, नहीं चराग तो क्या बल्ब तो चमकती है। सुबह तक टाइम है, बिगड़ मत। जो हाथ मसीहा उन हाथों की ताज़ीम करो। जो हाथ मसीहा होते हैं, वो इल्म का चश्मा होते हैं, वो फैज का दरिया होते हैं, वो सूर का तारा होते हैं, वो हाथ फरिश्ता होते हैं। उन हाथों की ताज़ीम करो, उन हाथों की तारीफ करो। होते हैं वो दर्द का दरमा होते हैं, वो ऐश का सामा होते हैं, वो मुनिसे इंसा होते हैं, वो यारे रगेजा होते हैं। उन हाथों की ताज़ीम करो, उन हाथों की तारीफ। वो हाथ हबीबे दिदाए तर, वो हाथ नकीबे नूरे सहर, वो हाथ रफीके दर्द जिगर, वो हाथ निशाने शाने बशर, वो जिनसे सुकून के सौदागर। उन हाथों की ताज़ीम करो, उन हाथों की तकरीब करो। वो हाथ अबू बीमारी के, असबाब हयात अफरोज़ी के, मैदान निशा गमखारी के, जो आदि है फैयाजी के, जो अकरम हसन नवाजी के। उन हाथों की ताज़ीम करो, उन हाथों की तकरीब करो। आइए सवाल हो गई, कुछ भी रहा न कहने को, हर बात हो गई, चलकर कहीं शराब पी रात हो गई। नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो। स्टेज पर बैठे हुए रमजान भाई किस्मत लेकर पैदा हो गए, कितनी भी उम्र हो जाए तो भाई कहते रमजान सर, अरे रजा सर और हारून सर, नूरानी सर, इसराइल सर के भी नाम मेरे नाम यानी जहन से ना नाम अक्सर निकल जाता है। ये आप लोगों को भी होता होगा ना सर? नहीं अब उम्र हो अशफाक अय्यूबी ने इतनी सारी बातें की कि मुझे अब शर्म आ रही है। मैं ऐसे मुकाबले से काम नहीं लेता हूँ। मैं इस्राइल सर के कबीले का हूँ।
जो दिल में आता है वो जुबान पे आ जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है हम लोगों के लिए। इसराइल सर मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। देखिए जब इससे पहले भी ये मिसिंग फ्रेंड्स ग्रुप में सर 2 मिनट बोलूँ ना, इजाजत है रमजान भाई? नहीं वो 1 मिनट मैं आपको बोलूंगा। मैंने बोला चाय लेंगे सर, बोले उसकी सूरत अच्छी नहीं है, मतलब बाजू में मैं बैठूं। इससे पहले भी रिजवान सर ने मुझे दावत दी थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं दावत में शरीक नहीं हो सका। लेकिन मुझे लगा था बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम होगा, लेकिन ये बहुत मुख्तसर प्रोग्राम है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। और उसका सबसे अच्छा जो है कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा इस ग्रुप का, मिसिंग फ्रेंड्स ग्रुप। मिसिंग फ्रेंड्स जो है इत्तेफाक से भी चंद रोज कबली अहमद मुश्ताक के गजल पढ़ा था मैं, तो उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि वो मिसिंग फ्रेंड्स ग्रुप के लिए गजल गई गई थी कि मिल ही जाएगा कहीं दिल को यकीन रहता है, मिल ही जाएगा कहीं दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है, जिसकी सांसों से महकते थे दरबाम तेरे, जिसकी सांसों से महकते थे दरबाम तेरे, ऐ मकाम बोल कहाँ अब वो फकीर है। दिल फसूदा तो हुआ देख के उसको, लेकिन दिल फसूदा तो हुआ देख के, लेकिन उसको उम्र भर कौन जवां कौन हंसी रहता है। क्या तो ये जो है आप लोगों के जज्बात से जो आपके कॉलेज के जो साथी थे उनको जमा करना, ये बहुत इस कॉन्सेप्ट की वजह से मैं आ जाए कि आप लोगों ने जहमत की कि अपने दोस्तों को ढूंढ कर तलाश करके प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। और जहां तक ये अवार्ड्स का ताल्लुक है तो मुझे तो नोबेल प्राइज पर भी भरोसा नहीं रहता। अभी देखो ट्रम्प जैसा आदमी भी अपने आप को पीस अवार्ड का पहले घंटे में समझता था कि मुझे पीस अवार्ड मिल सकता है, ट्रम्प जैसा आदमी। तो अशफाक उमर साहब मुझे माफ करना, जिनको भी अवार्ड मिले हैं मुझे यकीन है कि इसके लायक है। इनको जो अवार्ड दिया है तो एकेडमी ने अपना कद बढ़ाने की कोशिश की है, ऐसे लोगों को अवार्ड देगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुबारकबाद अपनी तरफ से भी देता हूँ और तमाम ग्रुप की तरफ से भी आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और जो लोग आज यानी कुछ लोगों को मिसाली टीचर मुदर्रिस का भी अवार्ड मिला है, उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। और जो रिटायर हुए हैं उनको इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ कि वो बाइज़र तरीके से रिटायर हो गए। बहुत सारे लोगों को रिटायर करना पड़ता है, तो मैं सबों को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत कुछ मेरा दिल चाहता था बात करने के लिए, लेकिन आप लोग बोलेंगे मेरा वक्त ना अशफाक अली में नहीं लगेगा। वैसे हमको एक्स्ट्रा वक्त देते हैं आप। क्या बात। अभी मंसूर अकबर साहब नहीं है ना, मुझे कल प्रोग्राम में मिले तो मुझे बोलने लगे कि यार उनसे कोई पूछ रहा था, मंसूर अकबर से शायद न्यूज़ वाले, उनसे कोई पूछ रहा था कि यार डॉक्टर साहब इतना मसरूफ रहते हैं, बात करने की फुर्सत नहीं रहती है, वो ये अदबी प्रोग्राम ये फालतू सब चीज में कैसे चले जाते हैं, कैसे वक्त निकालते हैं। देखिए ये उसका जुमला था। तो मुझे यानी तो मैंने मंसूर को बोला भाई मैं अपनी नशिस्तों में इसलिए आता हूँ कि बोलने का सलीका पैदा हो, सुनने का ज़र्फ पैदा हो। आज पूरी दुनिया में जो हमारी न्यू जनरेशन है इतनी बदअखलाक हो चुकी है, बदतमीज हो चुकी है, इसकी वाहिद वजह ये है कि वो अदब से दूर हो चुके हैं। अगर आज भी इन लोगों को अदब से जोड़ दिया जाए, क्योंकि अदब से आपको जीने का सलीका आता है, बोलने का सलीका आता है, सुनने का ज़र्फ आता है आप लोगों को। अगर आप जिस तरीके से यानी कि अदब से जितना दूर चले जाएंगे तो बेअदब होकर रह जाएंगे। और आज हमारी जनरेशन जो बेअदब है उसकी वाहिद वजह है कि अदब से दूर हो चुके हैं। तो ये काम बहुत बड़ा है हम लोगों का। अशफाक सर आप लोगों का काम है कि ये जनरेशन को आप साइंस पढ़ाइए, मैथ्स पढ़ाइए, सब पढ़ाइए, लेकिन अदब जो है उनको यकीनन याद कराइए। अपने बच्चों को बोलिए कि अशार याद करें। अशार कहने से यानी कि शायर फालतू काम नहीं करता है, बातों को सलीके से पेश करता है।
अभी देखिए रमजान में बैठे मुझे गजल याद आ गई, बोलो सर। रमजान भाई ने गालिबन गा लिया कि आपके सज्जादा नशी गए सुबह मेरे पास। बात कितनी सी है कि मुझे बोल रहे हैं कि अबे मैं भी मजनू के बाप हूँ, इतनी बात है। उसको शायद कहता है कि आपके सज्जादा नशी गए सुबह मेरे पास, ना रही दश्त में खाली कोई जा मेरे पास। तेज रखना सरे हर खार कोई दश्त जुनू, तेज रखना सरे हर खार कोई दश्त जुनू, शायद आ जाए कोई आपदा मेरे पास। मुंह पे रख शायद आ जाए कोई आपदा मेरे पास, मुंह पे रख दामन गुल रोएंगे मुर्गाने चमन, मुंह पे रख दामन गुल रोएंगे मुर्गाने चमन, हर रविश खाक उड़ाएंगे सबा मेरे पास। बात मरने के मेरी कब्र पे आया उम्मीद, याद आई मेरी सब दवा मेरे बाद। तो देखिए ये बात जो है, ये बात करने का सलीका जो है वो अदब से होता है। और आज हम जो महसूस करता हूँ मैं, अब हमारे बच्चों को आप साइंस की क्लास में, मैथ्स की क्लास में, अरे 10 अशार याद करा दीजिए उन्हें। देखिए वो अशार से जो है ना हमारी बात यानी कि वालिदैन का एहतराम अदब करना सीखेगा और अपनी बात को किस तरीके से पेश करना है वो सीखेगा। तो मैं ज्यादा तो वक्त मैं अभी बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, बाकी वक्त तो आपका ही है, बाकी वक्त तो आपका ही है। दूसरे जो है कि ये जो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है, टीचर्स रिटायर होता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कोई शख्स रिटायर कैसे हो सकता है। एक हदीस है जिसका मफहूम है कि अगर सूर फूंका जा चुका हो, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ रहे हो और तुम्हारे हाथ में एक फतीला हो, खजूर के दरख्त की रोट जो रहती है ना कलम, उसको फतीला कहते हैं कि अगर तुम्हारे हाथ में सूर फूंका जा चुका हो, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ रहे हो, तुम्हारे हाथ में एक फतीला हो और इतना वक्त हो कि तुम उसे जमीन में लगा सको, तो तुम्हारी कोशिश होना चाहिए कि उसे लगा दो। ये जो कॉन्सेप्ट जो है ये गैर शरई है। रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से गैर शरई है। इंसान मरते दम तक यानी कि वो रिटायर नहीं हो सकता। आपके पास जो इल्म है उसको बांटते रहना, इस पर आपका हिसाब होगा। मैं बता रहा हूँ, आप चिल्ले में गए 4 महीना गए कि नहीं, शायद उस पर कुछ नहीं होगी, लेकिन आपको अल्लाह ने जो इल्म दिया था वो आप कहाँ तक पहुँचाए। रमजान भाई मुझसे इत्तेफाक करेंगे, जो शख्स जिस फील्ड का है, रमजान भाई अगर अपने साथ सुरों को लेकर चले जाते हैं तो ये हमदर्दी होगी। यानी कि उससे पूछोगे कि मैंने तुझे एक हुनर दिया था, तूने उसका क्या किया। तो ये जो असातिज़ा हैं, अगर वो अपने हुनर को, अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाते हैं ईमानदारी से, तो मैं समझता हूँ कि फराइज के बाद कोई एक्स्ट्रा नवाफिल की को जरूरत नहीं है। आप अगर अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो आपको कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। मैं फिर किसी महफिल में कुछ तफसील से बातें होंगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद एक दफे और शुक्रिया। सवाल करेंगे हमारे तकलीफ है और हमारे ग्रुप के जो निगरान हैं और जो विधायक हैं उसके हमारे सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँ हमारे सदर साहब डॉक्टर सईद फारानी साहब। ये सबसे बड़ी बात है कि वो वक्त पे आए, जो वक्त बोले वो वक्त पे आए और काफ़ी अच्छा टाइम दिया और काफ़ी अच्छे काफी अच्छा अभी जो उनका जो सदाफती खुतबा था, काफी अच्छा खुतबा था और हर वक्त जो वक्त की जरूरत थी रिटायरमेंट की तालीम से जो उन्होंने बताया वो काफी अच्छा खुतबा था। अकबर इलाहाबादी ने इसीलिए शायद ये जो बोले अरबी जबान में बोले, अकबर इलाहाबादी उनके दौर से बोले कि आज तक हमारे क्या काम नुमाया कर गए, ये हुए, नौकर हुए, पेंशन लिए और मर गए। तो ये बात नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी मैं बोला था कि रिटायर होने के बाद में बड़ा अभी तो बंदिश रहती है नौकरी, जब जो नौकरी पेशा रहते हैं उनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ रहती है, फिर मैनेजमेंट की कुछ शहरियान की और कुछ अदब की। इसलिए अब आप फ्री आप अच्छा काम करो, शहर के लिए कौम के लिए अच्छा आप लोग काम करो। मैं दूसरी बात शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे हमारे मेहमान का, खास तौर से हमारे रमजान अहमद साहब, हमारे दरगाह साहब का आप लोग पहले आए और काफ़ी लंबा टाइम आप रहा। सर कई बार से हमारा चल रहा था आपको बुलाने के लिए, मगर हमारा प्रोग्राम अक्सर हाईवे फार्म हाउस पर होता था, इसलिए शायद ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने आज शहर के अंदर रखे आप लोगों के लिए हमारे कमरों में भैया की काफ़ी ख्वाहिश थी आप लोगों को बुलाने के लिए। हमारे रमजान रजा सर, उमर रजा सर जिससे पहले भी हमारे पास आए और हम उनको खास तौर से
बात भी सुनाएं। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जबान सुनने से अच्छी जबान आती है, कई बार जबान हमारी अच्छी इसलिए नहीं होती कि हम अच्छी जबान सुन नहीं पाते, इसलिए हमारी जबान अच्छी नहीं होती। सर ये हम हमारे इस्लाह के लिए भी आप लोगों को बुलाते हैं, हमारे यूसुफ सर, हेड मास्टर साहब यूसुफ सर साहब में आप आए, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हारून सर सॉरी सर, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से हमारे जो मिसिंग ग्रुप के जो जिम्मेदार हैं, साहिब पार्टी हमारे कमिटी भैया साहब, हमारे हकीम दादा साहब, अशफाक अयूबी साहब के आप लोगों ने काफ़ी इसके लिए कोशिश भी की, मेहनत भी की, बड़ा गेट टुगेदर होना चाहिए। और हमारे साहिब साहब बहुत शॉर्ट कल उनको शाम में फोन किया, रात वो आए, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑफिस में में काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी सोशल वर्क भी करते हैं, और जितने भी हमारे साहिब एजाजी मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे मिसिंग ग्रुप के ऑल मेम्बर जो आप सब अपने अंदर एक बिजी है, सब अंदर अपने अंदर एक बड़ा सर्कल है, सब अपने मसरूफियत को छोड़ के जब भी मीटिंग रहती है आप लोग वक्त पर आते और पूरे खत्म होने तक पूरा टाइम आप लोग इसमें रहते हैं। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा भी इंशाल्लाह इसी मौके पर जब भी होगा आप लोग हाजिर रहेंगे, और जो एम लेके हम चलते हैं किसी भी ताल्लुक से उसके ऊपर आप लोग हमेशा साथ में रहेंगे और हाजिर रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।